Today we will be discussing about an important aspect of medical education, which is delivering the bad news. We will be discussing delivery of the bad news through a spikes model. It has 6 components. So explaining the 6 components, first we will start with S of spikes. S stands for setting up. We have to set up the interview with the patient. First, a doctor can revise the interview in his mind, what he has to deliver, find privacy with the patient, then ask if the patient requires another relative with him while we deliver bad news to him. And after that, we move on to the second aspect, which is P, perception. We have to know what the patient already knows about his condition. What is his level of perception? How much does he know? That will help us to know how informative the patient is about his condition. After that, the third component is invitation. We have to see if the patient is inviting enough for bad news from us. The patient has right not to know his condition. After that, there is a fourth component, which is K, knowledge. Knowledge and information has to be delivered in non-technical words, which are words that could be understood by the patient and his relatives. We shouldn't use fancy technical words which are not known by non-medicos. After that, the fifth aspect is E, which stands for emotions. We have to be sympathetic towards the emotions of the patient. We have just delivered bad news to the patient, so we have to be ready that the patient might get emotional. We have to be sympathetic for those emotions. After that, the sixth aspect is strategy and summary. We have to summarize the entire interview and ask the patient if he has any other questions regarding his condition or about any other further interventions that we have told him about. So these are the 6 components of spikes protocol for delivering bad news to the patient. We will be showing declaring of bad news using the spikes protocol. First, we will be showing the first aspect of spikes protocol, S, which stands for setting up of interview. आपको पता है आपकी बीमारी की जानकारी देने के लिए मैंने बुलाया आपको। मैं समझता हूँ काफी मुश्किल समय होगा आपके लिए। आपके रिश्तेदार या आप दोस्त को बुलाना चाहोगे आपकी वो जानकारी जानने के लिए या फिर आप खुद जाओगे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अकेला, आप मुझे अपनी मेरी बीमारी की जानकारी आप दे सकते हैं। Now we will be showing the second aspect, P, which stands for perception. आपको आपकी बीमारी के बारे में अभी तक क्या पता है? सर, मुझे बस इतना पता है कि मेरे दोनों गुर्दों में प्रॉब्लम है और मेरे इसी वजह से पैर में सूजन आती, गड्ढे पड़ जाते हैं और कभी कभी सांस फूल जाती है और वो ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से मुझे दूसरे डॉक्टर ने यहाँ एडमिट करा था। Now we will be showing the third aspect, I, which stands for invitation. तो क्या आप अपनी बीमारी के बारे में पूरा जानना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। Now we will be showing the fourth aspect of spikes protocol, K, which stands for knowledge. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो है गुर्दों की बीमारी है, जो हम मेडिकल की भाषा में बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। अभी ये जो विश्व भर में इसके सामान्य कारणों में रहता है, बीपी और शुगर की बीमारी की वजह से ये होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज कहते हैं। आपको अभी ये 3 साल से बीमारी है, तो उसके कारण ये बीमारी होने का कारण बन सकती है। आपका जो सोनोग्राफी किया था उसमें जो किडनी का आपका आकार है वो छोटा हो गया, यानी अपन ये मान रहे हैं कि ये आपकी बीपी की बीमारी की वजह से आपको एक किडनी का बीमारी हुआ है। मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे अपनी किडनी बदलनी पड़ेगी? ये क्या ये बीमारी आम है डॉक्टर साहब? आपकी ये जो किडनी की बीमारी है उसके पास अपने पास एक इलाज है रक्त का शुद्धिकरण करने का, जिसको अपन डायलिसिस बोलते हैं। विश्व भर में जो 14% लोगों को किडनी का बीमारी होता है, उसमें से 67% लोगों को ये रक्त का शुद्धिकरण यानी डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। अब ये अपन कैसे करते हैं? गले में एक नली डालनी पड़ती है, जिसके लिए अपन सुन्नी देते हैं पहले, बाद में नली डालते हैं, वो अपन 1 महीने के लिए रखते हैं। 1 महीने से ज्यादा उसके द्वारा अपन डायलिसिस नहीं कर सकते, उसका कारण है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद अपन डायलिसिस करने का उपाय कर सकते हैं, हाथ की दोनों से जोड़ के एबी फिशर नाम की एक सर्जरी रहती है, छोटा सा सर्जरी रहता है पर वो करना आवश्यक रहता है, जो लंबे समय तक आप रक्त का शुद्धिकरण उसके द्वारा कर सकते हैं। ये एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय है अपने पास कि आपका किडनी अपन ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट मतलब मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। किडनी ट्रांसप्लांट यानी दूसरे जन का किडनी आपके शरीर में डालना पड़ेगा।
उसके लिए आपका और उनकी जांच मेल खानी चाहिए। भारतवर्ष में पूरे एक साल में 2 लाख पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जबकि अपन कर पाते हैं 6000 किडनी ट्रांसप्लांट होता है। इसके लिए जब भी लगेगा हम आपको सुझाव देंगे उसके लिए। Now we will be showing the fifth aspect of Spike's protocol, E, which stands for emotion. सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सर मैं बचूंगा कि नहीं सर? मैं समझ सकता हूँ कि ये बीमारी जान के आपको काफी मानसिक तनाव होगा, काफी सवाल होंगे आपके लिए, पर मैं और मेरी टीम पूरी आपके समर्थन के लिए है। ये रक्त का जो शुद्धिकरण है अपन जल्दी से शुरू कर देंगे और मेरी पूरी टीम इसके समर्थन में रहेंगे। धन्यवाद सर। Now we will be showing the final and sixth aspect of Spike's protocol, S, which stands for summary. अभी देखिए आपकी ये जो गुर्दों की बीमारी है, उसके लिए जो अपन रक्त का शुद्धिकरण अपन शुरू करने वाले हैं, उसके लिए हम आपको थोड़ी दवाई लिख के देंगे। आपको बता देंगे कि हफ्ते में कौन से दिन पे और कैसे आपको रक्त के शुद्धिकरण के लिए यानी डायलिसिस के लिए आना। आपको नियमित रूप से आना पड़ेगा और जब भी हमें लगेगा आपको रिनल ट्रांसप्लांट के लिए सुझाव देने का, हम ट्रांसप्लांट के आपको सुझाव देंगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद।